आज आप में से मेरे दो स्टूडेंट्स उनको मैंने कहा था थोड़ा सा जल्दी आ जाएं, तो मैं खुद ही लेट हो गया। आपको कहा था और किसी को कहा था मैंने, एक और कहा था। आप लोग भी भूल गए थे क्या? आप लोग आए थे? रियली सॉरी उसके लिए। क्लास के बाद मैं आज आपको टाइम देता हूँ, ठीक है? आज डेफिनेटली। हाँ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दो क्लास में बहुत कुछ समझ लिया है। आज आराम से बैठ के जो है वो लिखते हैं, ठीक है? सब लोग स्पीड अप हो जाए। पहला लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन। आप में से मेरे ख्याल से दो लोगों का पहला क्लास है क्या आज? आपका और आपका पहला क्लास है क्या? ठीक है। हम लोग को ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर है आज। तो उस बीच में हम लोग 2 दिन में हमने काफ़ी लिखा कुछ नहीं है, सिर्फ समझा है, ठीक है? तो आज आप लोग कौन से मीडियम के हैं आप दोनों? इंग्लिश में। इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग बस आज लिखिए। हाँ, क्लास के बाद मेरे साथ बैठेगा आप तीनों लोग, ठीक है? 10-10 मिनट करके हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? लिखिए। कुछ पहले हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है? लिखिए पहले इक्वेटर। इसमें लिखिए a horizontal line, an imaginary horizontal line dividing the earth, ब्रैकेट में लिखे स्फेयर, into 2 equal parts, ब्रैकेट में नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। North hemisphere and south hemisphere is called equator. Next लिखिए latitude. Latitude is an imaginary line. Latitude is an imaginary line drawn parallel to equator. Drawn parallel to equator in east-west direction या west-east direction. In east-west direction. नेक्स्ट लिखिएगा, इसी में आगे लिखिए above equator there are 90 lines of latitudes या 90 latitudes. There are 90 latitudes, each representing 1 degree. Each representing 1 degree. Next लिखिएगा, all the latitudes are parallel to equator as well as to one another. The length of latitude keeps on decreasing from equator towards the pole, ब्रैकेट में 90 डिग्री, towards the pole, ब्रैकेट में 90 डिग्री. नेक्स्ट लिखिएगा, सिमिलरली there are 90 lines of latitudes. Similarly there are 90 lines of latitudes below equator.
within a latitude each degree is subdivided into 60 minute and each minute into 60 seconds. The distance between each latitude is same ब्रैकेट में लिखिएगा approximately 69 miles, approximately 69 miles. Latitudes are used to calculate distance from the equator. स्टार मार्क करिएगा. Equator can be called 0 degree latitude. Major lines of latitudes या major latitudes are लिखिए इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्किल सारे लिख लें आप लोग. आर्कटिक सर्किल. नेक्स्ट क्या हो सकता है? अंटार्कटिक सर्किल. क्या डिग्री है उसकी? हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ. क्विकली लिखें. नेक्स्ट लिखेगा लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन emerging from one pole, passing through equator and seems to be entering another pole. Longitude are imaginary line emerging from one pole, passing through equator and seems to be entering या ending at another pole. ठीक है. नॉर्थ पोल, इक्वेटर एंड साउथ पोल. ठीक है. all the longitudes divides the earth into two equal parts. Longitudes are also called meridian. Longitudes are also called meridian. It was decided in 1884 that meridian passing through Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London
रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंडन will be called as prime meridian, ब्रैकेट में 0 डिग्री। नेक्स्ट लिखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड is maximum at poles, the distance between longitude is maximum at pole, हाँ जी सॉरी मैक्सिमम एट सॉरी इक्वेटर, maximum at equator as we move from equator towards pole distance keeps on decreasing. At pole all the longitudes at poles all the longitudes seems to be converging, ब्रैकेट में लिखिएगा that is distance is 0. Longitudes are used to calculate local time in relation to Greenwich mean time, in relation to या in relation with, क्या लिखा है मैंने, in relation to Greenwich mean time लिख लिया, ब्रैकेट में लिखिएगा वर्ल्ड टाइम, जो ग्रीनविच से जो टाइम निकल रहा है उसको हम लोग वर्ल्ड टाइम कह रहे हैं, ठीक है। आगे लिखिए इसमें देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ GM टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन, मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन ऑब्लिक 0 डिग्री ऑब्लिक प्राइम मेरिडियन ना, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड टू द वेस्ट ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सिंस अर्थ मेक्स, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा, सिंस द अर्थ मेक one complete rotation of 360 degree in 24 hours, it passes through 15 degree in 1 hour or 1 degree in 4 minutes. Earth rotates from west to east. So every 15 degree we go eastward. Local time is advanced by, हाँ जी, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाई, ये जो स्थानिक समय है, इज एडवांस्ड बाई 1 आवर। इफ वी गो वेस्टवर्ड फॉर एवरी 15 डिग्री local time is retarded by 1 hour, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ईस्ट गेन एड
ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर मेमोरी पर्पस के लिए, ईस्ट गेन ऐड वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, दो अलग अलग चीजें हैं, ईस्ट गेन ऐड कॉमा वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। ये लिखवा दिया है मैंने, इसको याद बस जो हमने समझा था वो मेरे ख्याल सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है। ये तो मैंने लिखवाने के पर्पज से लिखवा दिया आप लोगों को, लेकिन जो हमने समझा था वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज समझी थी हम लोगों ने, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 260 डिग्री पर अगर यहाँ पे फ्राइडे का 12 बजा हुआ है, ठीक है, 260 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हुआ होगा आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे? हाँ, सिंपल सिंपल हम लोगों को 15-15 डिग्री हम लोगों को ईस्ट जाना है, ठीक है, हर 15 डिग्री पे हम लोगों को 1 घंटा आगे चलते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है। जब 260 पे पहुंचेंगे, जो टाइम आ गया वो बस हम लोग को वहीं पे आकर रुक जाना है। क्लियर हो गया चीजें? कोई इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही, आप लोगों को तो वो समझा नहीं आप लोगों ने, बाकी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब हिंदी में लिखना शुरू करें। लिखिए परिचय, इसमें लिखिए भूमध्य रेखा ऑब्लिक विषुवत रेखा। वह काल्पनिक क्षैतिज रेखा, वह काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर, आराम से जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटती है, कॉमा भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ये ड्रॉ भी करेंगे आप लोग, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा अक्षांश। वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में स्थित हो तथा भूमध्य रेखा के समानांतर स्थित हो, कॉमा अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जा सकता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जा सकता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश स्थित हैं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश स्थित हैं। बहुत छोटे छोटे हो रहा है, ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री है, सिमिलरली यहाँ पे 90 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा सभी अक्षांशों के मध्य दूरी समान होती है
ब्रैकेट में लिखिएगा 69 मील। सभी अक्षांशों के मध्य दूरी समान होती है। सभी अक्षांश आपस में तथा भूमध्य रेखा से समानांतर होते हैं। हाँ जी, सभी अक्षांश आपस में तथा भूमध्य रेखा से समानांतर स्थित होते हैं। दो अक्षांश के मध्य 1 डिग्री का अंतर होता है। दो अक्षांश के मध्य 1 डिग्री का अंतर होता है। प्रत्येक डिग्री 60 मिनट में विभाजित होती है। प्रत्येक डिग्री 60 मिनट में विभाजित होती है तथा प्रत्येक मिनट 60 सेकंड में विभाजित है। नेक्स्ट लिखिएगा मुख्य अक्षांश, सॉरी ये मत लिखिएगा, एक लिखिएगा अक्षांश की सहायता भूमध्य रेखा से दूरी नापने के लिए की जाती है। दूरी नापने के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा प्रमुख अक्षांश, बुलेट फॉर्म में लिखिएगा। कौन कौन से लिखेंगे बताइए प्रमुख अक्षांश आप लोग? प्रमुख अक्षांश कौन कौन से हैं? 0 डिग्री है, 23 नॉर्थ साउथ, 66 नॉर्थ साउथ और 90 नॉर्थ साउथ। नाम क्या क्या है बताएं, नाम बताएं सर सारे। 0 डिग्री विषुवत रेखा। हाँ जी 23.5 डिग्री मकर रेखा जी। और सर 66 डिग्री सर वो दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो आपको पता है, थोड़ा सा वो हो गए एकदम से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? आप बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? थोड़ा सा आप घबरा गए। हाँ बताइए। 0 डिग्री मध्य रेखा आराम से, हाँ ठीक है, और बताइए। दक्षिण में पहले उत्तर से शुरू, उत्तर में जाइए, उत्तर में। उत्तर में कर्क रेखा। कौन सी कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। और 66 डिग्री हाँ जी उत्तरी गोलार्ध रेखा। ठीक है। और दक्षिण में सर 33 डिग्री मकर रेखा और 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, वही ठीक है। और 90 डिग्री क्या है हमारा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लिख लीजिए जल्दी से, सब लोग लिखें। क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, लिखें फटाफट लिखें। नेक्स्ट लिखेंगे देशांतर। कोई डाउट है? लिख लिया सबने हिंदी में? हाँ लिखिए देशांतर। उसमें लिखिए वह काल्पनिक रेखा जो एक ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है, कौमा भूमध्य रेखा से गुजरती है तथा दूसरे ध्रुव में विलीन होती हुई प्रतीत होती है। दूसरे ध्रुव में विलीन होते हुए प्रतीत होती है, सेमीकोलन देशांतर कहलाती है। पृथ्वी पर 360
देशांतर स्थित हैं, पृथ्वी पर 360 देशांतर स्थित हैं। 1884 में यह निर्णय लिया गया कि वह देशांतर जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन के समीप, लिखें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन के समीप से गुजरती है सेमीकोलन प्रधान देशांतर ऑब्लिक 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। एक क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल है, सरकमफ्रेंस क्या चीज होती है? सरकमफ्रेंस, ठीक है, किसी को अगर हम लोग कोई गोला है उसके या फिर कोई भी एरिया है उसको हम लोगों ने बाहर से हमने नाप लिया, इंची टेप से नाप लिया, उसमें सरकमफ्रेंस कहेंगे। अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है? हाँ, ये तो सर्किल का है ना, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, 64, हाँ ठीक है कैलकुलेट कर लो ठीक है, तो इसको आप लोग देख के चलें, ठीक है। कभी कभी बहुत सिंपल चीज पूछ लेते हैं, वहीं मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में हम लोग कैलकुलेशन में हम लोग वहां पे इतना होता है, जैसे आपने 2πr कहा, आपने रेडियस बता दिया, तो हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चाहे किलोमीटर में हो या मील में हो, आप लोग थोड़ा सा देख के चलें। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को ऐसे फॉर्मूला पता है, रेडियस पता है, तो ध्यान से वहां पे कैलकुलेट करें, ठीक है। मैं मील में बता दे रहा हूँ, मील में यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 मील है, सरकमफ्रेंस कितना है? 25,000 माइल है, ठीक है। अब आगे लिखे, हिंदी में लिखे, देशांतर के मध्य अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, सेमीकोलन न्यूनतम दूरी ब्रैकेट में लिखे 0 किलोमीटर ध्रुवों पर स्थित है। अच्छा, मैं इसे आप लोग हैं, आप और आप प्लेन पेपर में लिखें, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे लूज पेपर्स हैं, मतलब ऐसे स्पाइरल हो, मतलब स्पाइरल हो नहीं हो, लेकिन प्लेन पेपर यूज करें, ठीक है। कोई और रूल तो यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी रूल यूज ना करें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? कहाँ पे? एग्जाम में कैसा आंसर शीट वहां ब्लैंक आती है ना, तो आप पता लिखेंगे तो कैसे जाएगा, ये हमारा ऐसा है, आप जब लिखेंगे ना, बस रियली बता रहा हूँ ऐसे ही जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने हर समय आपको कहा है, देखिए अब सब शांत हो जाएं प्लीज सब शांत हो जाएं। क्या, अरे क्या हुआ ठीक है, सब लोग, मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं जब हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे ना, तब हम लिखेंगे, थोड़ा सा पेज वेस्ट होगा, लेकिन आप लोग जो हाथ सेट हो जाएगा ना, वो आप लोगों को वहां पे हेल्प करेगा। थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा पेज वेस्ट होगा, लेकिन आप लोग जो हाथ सेट हो जाएगा ना, वो आप लोगों को वहां पे हेल्प करेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे छोड़िए, थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे छोड़िए। हम लोग को लगता है कि 4 बार लिख लिख के हम लोग पूरा एक साल भर का रेंट बचा लेंगे ठीक है, रेंट नहीं बचने वाला, ठीक है।
तो थोड़ा सा डिस्टेंस बचा के छोड़े। मैंने इसका आपको बताया था, ये आपको बाद में हेल्प करेगा जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे। तो कभी कभी होता है, कभी कभी अक्सर हुआ आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने होंगे, तो वहां पे आप ऐड कर लें, लेकिन लिखते समय आप लोग ऐसे लिखें, प्लेन पेपर यूज करें। ठीक है, सभी लोग प्लेन पेपर यूज करें। हाँ, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, देशांतर का उपयोग, देशांतर का उपयोग स्थानिक समय को जानने के लिए किया जाता है। ब्रैकेट में लिखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम, ब्रैकेट में जीएमटी। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा, चूंकि पृथ्वी एक पूरा घूर्ण, चूंकि पृथ्वी एक पूरा घूर्ण, ब्रैकेट में लिखिएगा 360 डिग्री, ब्रैकेट में 360 डिग्री 24 घंटे में पूरा कर लेती है, इस तरह 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में पृथ्वी पूरा कर लेती है। ब्रैकेट में लिखिएगा, इसी तरह 1 डिग्री का फासला 4 मिनट में पूरा किया जाता है। इसको आप लिख भी लें। ठीक है, लिख लें इसको। नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें आगे हिंदी में लिखिए, यदि हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा में जाते हैं, पूर्व दिशा में जाते हैं, उस स्थिति में स्थानिक समय जीएमटी से प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे जाएगा। ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि पृथ्वी के घूर्ण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, पृथ्वी के घूर्ण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। ब्रैकेट क्लोज कर दी। नेक्स्ट लिखिए, इसी तरह 0 डिग्री देशांतर से प्रत्येक 15 डिग्री पश्चिम की ओर 1 घंटे का ह्रास होगा या नुकसान होगा, 1 घंटे का ह्रास होगा। नेक्स्ट इंग्लिश में लिखिएगा, thus there is a total difference of 24 hours or whole day between two sides of, क्या होगा, two sides of 180 degree longitude. This is international date line. This is international date line where date changes by exactly 1 day when it is crossed. When it is crossed.
पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, आप बताएं। हाँ जी। सर जब वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो वन डे ऐड हो जाएगा, और वेस्ट ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो वन डे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, लिखें। अ ट्रैवलर क्रॉसिंग डेट लाइन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, टॉपिक है, ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज्योग्राफी या जीएस से कंटेक्स्ट में बहुत घिसा पिटा हो चुका है। मतलब क्या है, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं है, लेकिन कभी कभार होता है ना कि हम लोग इजी समझ के छोड़ देते हैं, हाँ? और वहां पे आ गया तो वहां पे एक बॉम्ब की तरह काम करता है, ये क्या आ गया हम समझ ही नहीं सकते। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। अभी के सिनेरियो में ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, हाँ, लेकिन तब भी हम उसको समझ लें तो कभी ये आ सकता है, क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया, ये काफी साल से नहीं है। अ ट्रैवलर क्रॉसिंग अ डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट loses a day while crossing a date line from west to east, he gains a day. He gains a day. हिंदी में लिखे हैं, इसमें लिखिएगा, इस तरह हम देख सकते हैं कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 24 घंटे कॉमा ऑब्लिक एक दिन का फासला रहता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यदि कोई यात्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम दिशा में पार करेगा, उस स्थिति में उस यात्री को एक दिन का नुकसान होगा। वही यात्री अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करता है, उसे एक दिन का फायदा होगा। हम लोग लिख भी लेते हैं इसको। जो एग्जाम्पल हमने समझा था हम वही एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने यहां पे बनाया था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और यहां पे मैंने बताया था 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बताया था, 12 नून फ्राइडे, यही समझा था हम लोगों ने। और यहां पे हम जब पहुंचे हैं तो यहां पर क्या हुआ है, मतलब फ्राइडे एंड यही लिखा था। इस तरफ क्या होगा हम लोगों का, यहां पर भी 12 मिडनाइट होगी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा होगा हम लोगों का, लेकिन यहां पर क्या हो रहा होगा हम लोगों का, सही लिखा है मैंने।
ठीक है, इसको नोट कर लें। मैंने आपको यही बताया, अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो हमें एक दिन का नुकसान होगा, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो एक दिन का फायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, ये ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करें। नेक्स्ट लिखें आप लोग इंसुलेशन, सूर्यातप। इंग्लिश में लिखें इनकमिंग सोलार रेडिएशन, इनकमिंग सोलार रेडिएशन फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड insolation. It is in the form of short wave. It has high energy. Atmosphere is transparent to insolation. नेक्स्ट लिखिए सोलार कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हाँ जी जी। एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग इंसुलेशन या फिर इंसुलेशन। नेक्स्ट लिखिएगा सोलार कांस्टेंट। क्या सोलार कांस्टेंट? 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। लिख लिए 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट लिखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। इसमें लिखें सोलार insulation received by earth is same despite that we find areas of various temperature on the earth's surface. Hence we can say that hence there is a need to study distribution of insulation on the earth's surface. Distribution of insulation on the earth's surface. And factors affecting its distribution. ठीक है, पहला फैक्टर लिखें एंगल ऑफ द सन रेज। एंगल ऑफ द सन रेज, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? एंगल ऑफ द सन रेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो अगर हम एंगल देख रहे हैं तो लोअर लैटिट्यूड
या निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं वहां पर हमारी जो सूर्य की किरणें हैं, सनरेज हैं, डायरेक्ट गिर रही हैं, कम एरिया में गिर रही हैं। आपने कल कहा था इंटेंसिटी जो है उनकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कम एटमॉस्फेयर से गुजर रही हैं तो इसका नुकसान कम हो रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी पहुंच रही है। नुकसान कहां पे कम हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कम चीजों टकरा रही हैं तो ज्यादा एनर्जी नीचे पहुंच जा रही है। हम लोग कल समझ चुके थे चीज। सिमिलरली सेकेंड जो रेज हैं इनको, इनका एंगल थोड़ा सा ज्यादा है तो ये थोड़ा बड़े एरिया में फैल गई हैं। जब बड़े एरिया में फैल गई हैं तो उनका जो जितनी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ज्यादा, तो हर एक को कम कम एनर्जी मिली, कम कम टेम्परेचर मिला, तो वहां पर टेम्परेचर हम लोगों का कम हो गया। और ये इनका जो एटमॉस्फेयर, ज्यादा एटमॉस्फेयर से गुजर रही हैं तो ज्यादा इनका नुकसान पहुंच रहा है, तो कम एनर्जी पहुंच पा रही है। रिलेट कर पा रहे हैं? इसी तरीके से पोलर एरियाज में क्या होता है, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो जब जैसी गुजर रही है तो किससे टकरा रहे हैं, बादल से टकरा रही हैं, पानी से या फिर धूल से, गैस से टकरा रहे हैं, वो सब एनर्जी इसकी चुरा ले रहे हैं, तो सबसे कम एनर्जी कहां पहुंच रही है, पोल्स में पहुंच रही है। और एक तो सबसे कम एनर्जी पहुंच रही है, ऊपर से हर समय एकदम स्लैंटिंग है, एकदम तिरछी है, तो क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी पहुंच रही है वो फैल और जा रही है, तो सबसे कम टेम्परेचर हम लोगों को पोलर एरिया से मिलता है। क्लियर होगा चीज ये? ठीक है, इसी को लिखना है। ये ड्रॉ कर लीजिए, पहले ड्रॉ करें, हिंदी में लिखे तब तक। सूर्यातप, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं, सौरिक ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप की ऊर्जा अधिक होती है, कॉमा, यह लघु तरंग के रूप में होता है, यह लघु तरंग के रूप में होता है, तथा पृथ्वी का वातावरण, सॉरी वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल सूर्यातप के लिए पारदर्शी होता है, सूर्यातप के लिए पारदर्शी होता है। नेक्स्ट लिखिएगा सूर्यातप का वितरण, सूर्यातप का वितरण, इसमें लिखिएगा पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला लिखिएगा सूर्य किरणों का सापेक्ष तिरछापन, सूर्य किरणों का सापेक्ष तिरछापन, ये ड्रॉ करें आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में लिखें। इन द लोअर latitudes sun rays fall directly on the earth's surface in perpendicular direction, due to this energy per area is very high
also in this zone the part of atmosphere they need to cover is also small. They need to cover is also small. Hence, the loss of energy while passing the atmosphere is less. Therefore, more energy reaches Earth's surface in low latitude areas. Earth's surface in low latitude areas. In middle latitudes, sun rays are slightly slanting. In middle latitude, sun rays are slightly slanting. Due to this, energy gets comparatively dispersed in this zone. Next sentence रहेगा, in this zone atmospheric area to be covered is comparatively large. Hence, loss of energy while passing is also high. Therefore, in comparison to low latitude, less energy reaches Earth's surface. कहाँ से कंपैरेटिवली नहीं, ये कंपैरिजन इन कंपैरिजन बोला हो, कंपैरेटिवली नहीं बोला है मैंने. इन कंपैरिजन टू लो लैटिट्यूड लेस एनर्जी रीचेस अर्थ सरफेस. नेक्स्ट लिखेगा एट हायर लैटिट्यूड ब्रैकेट में पोलर एरियाज सन रेज आर वेरी स्लैंटिंग. Sun rays are very slanting. Hence, energy gets dispersed in larger area. Energy gets dispersed in larger area. Also, the area of atmosphere to be covered is largest. इसमें आगे लिखेगा therefore the loss of energy while passing the atmosphere is highest. Hence least energy reaches the polar areas, reaches the Earth's surface in polar areas. Reaches the Earth's surface in polar areas. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग ड्यूरेशन ऑफ द डे. इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा?
ड्यूरेशन ऑफ द डे में सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स का, सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स का डायग्राम बनेगा, ठीक है। हाँ, अब हिंदी में लिखे, हेडिंग डलवाई मैंने, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। इसमें लिखे हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में सूर्य किरणें लगभग लंबवत रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं। इस कारण सूर्य की किरणों की ऊर्जा प्रति क्षेत्र में सबसे अधिक गिरती है। साथ ही साथ निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में, निम्न अक्षांश क्या है? निम्न अक्षांश मतलब क्या होता है? हिंदी में बताएं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, निम्न अक्षांश मतलब क्या है? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र बताएं हिंदी के स्टूडेंट्स। मैंने जो वर्ड बोला निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, इसमें इसका मतलब क्या है? क्षेत्र समझ रहे हैं? अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश क्या है? यहाँ पर जो लाइंस आ रही है ना, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। निम्न मतलब क्या होता है? निचले ना, छोटे। तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र क्या हुए? हाँ, 66.5 डिग्री। नहीं, यही तो मैं कह रहा था, मुझे लगा। लोअर लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लोअर लैटिट्यूड्स, लो लैटिट्यूड एरिया। हाँ बताएं, आप हिंदी में हैं, बताएं। जो 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया होगा ज्यादातर स्टेशनरी एरिया। ये देखिए मैंने बताया है ना, देखिए वन बनाया है, ये निम्न अक्षांशीय है, ठीक है। दूसरा बनाया ना, दूसरा ये वाला, ये वाला मतलब कौन सा है? देखिए मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक बार आप लोगों को क्लैरिफाई किया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब समझ में आया? ये जो मैंने रेड क्रॉस किया है, ठीक है, ये क्या होगा? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र बोल दिया हमने, ठीक है। लो लैटिट्यूड्स, ये जो दो क्रॉस बने हुए हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र या फिर मिडिल लैटिट्यूड एरिया। और ये क्या है? हाई लैटिट्यूड एरिया या फिर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। ये क्लियर हुआ सबको अब? हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये ब्रॉड किसके अंदर आते हैं? 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ के अंदर आते हैं, ठीक है। आप हर समय अगर जब भी पेपर में आ रहा हो, ये जब भी ये पूरा है ना, तो पूरा पढ़िएगा 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। मैं क्यों बोल रहा हूं? 2014 का पेपर किसने पढ़ा है? पीटी का 2014 का आप जीएस का पेपर निकालिएगा, ठीक है। वहां पे आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, वहां पे आप ये वर्ड देखेंगे 23.5, ठीक है। हाँ, और वहां पे क्या देखेंगे आप लोग? क्वेश्चन आया हुआ एक विंड से लेकर, हाँ, विंड को लेकर क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन आया कि ये विंड 0 डिग्री और 23.5 के बीच में बहती है, हाँ, ठीक है। तो वो एक्चुअल में नॉर्थ और साउथ में वो कंफ्यूजन हो गया। जब तक आप 23.5 पढ़ लिया, आपने 0 डिग्री पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अगर आपने नॉर्थ और साउथ नहीं देखा, यूपीएससी का क्वेश्चन का कैच ही वही था, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो वो कैच था। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें, मैंने आपको क्या है, वर्ड टू वर्ड आप ध्यान दें।
ये पूरा एक वर्ड नहीं है, इसके दो वर्ड्स हैं, 23.5 ये है, नॉर्थ एक अलग वर्ड है, लेकिन हम इसको एक मानते हैं ना, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। यूपीएससी को पता है बच्चे क्या इग्नोर कर रहे हैं और वहीं पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा 2014 में बता दे रहा हूँ, 2014 में आप लोग देखेंगे विंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, विंड से रिलेटेड, उसमें 23.5 आया हुआ है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो हम लोगों को शुरू में हम लोग क्लैरिफाई नहीं करते हैं। जैसे अभी आप लोगों को डाउट था, आपने किसी ने नहीं पूछा, मुझे पता है आप लोगों को क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने किसी ने क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, देखिए ये जो बनाना होता है ना, ऐसे ही हम लोग ऐसे ही सीखेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं तो इसमें बीए एमए सब कुछ एमफिल एमफिल सब इसी में हो रखा है, लेकिन जब हमने बीए किया था तो हम लोगों को ऐसे ही हमने रूम में बैठ के ऐसे ही सीखा था। तो वो इमेज जो मैंने, देखिए जो ऑप्शंस में होता है 4 साल में होता है, 3 साल में होता है, आप लोगों ने 4 महीने 5 महीने में करना है। यही यहाँ पे मेहनत है, आप लोगों की यही मेहनत है जो आप लोगों को इस एग्जाम की डिमांड है। तो आप लोगों को, लेकिन ये सब ऐसे ही करेंगे तभी आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ब्रॉड ब्रॉड पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी, मुझे ध्यान है मेरे एक सीनियर था, वो 17 रैंक लेके आए थे। ठीक है, जब हम लोग जस्ट जेएनयू में एंटर किए तो 17 रैंक लेके आए। उस साल उनका मतलब वो बैड लक कह रही है, बैड लक कैसे 17 रैंक आई, लेकिन वो बोलते थे यार मैं फंस गया। कैसे, वो हर समय डालते थे आईएएस आईपीएस आईएफएस जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है, तो वो बार बार दी जा रही, 3 बार इंटरव्यू गया उनका, वो करके बोलते हैं अरे यार सब बेकार चीज है, कुछ भी डाल दो। उन्होंने पहला आईएफएस डाल दिया, इंडियन फॉरेन सर्विसेज उनका 17 रैंक आई थी, तो चले गए वो, अच्छा है मतलब बहुत अच्छे सेटल है वो। लेकिन हम लोग गए भाई, इन्होंने ऐसा क्या पढ़ा, तो उसमें तो बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होता है ना कि ये क्या पढ़ लिया। एक तो हम वहां पहुंचे, वहां पे हर दूसरा बंदा हिंदू खोल के बैठा है, जेएनयू में हर दूसरा बंदा पढ़ रहा है, तो सब पढ़ रहे हैं सब पढ़ रहे हैं। वो उनका सिलेक्शन हुआ, हमारे सीनियर थे, तो हम लोग पहुंचे, हमको लगा कि बहुत सारी किताबें होंगी। ठीक है, वो छोटा सा लकड़ी का रैक आता है जिसमें 3 शेल्फ होते हैं बस, कभी देखा आप लोगों ने? ठीक है, उसमें से उनके 2 शेल्फ भरे हुए थे बस। सबसे ज्योग्राफी ऑप्शनल की किताबें सबसे ऊपर उनकी रखी हुई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ पर्सनल नोट्स इतने से लिटरली, और एनसीईआरटी किताबें रखी थी, और कुछ भी नहीं था। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भी देखिए ये, ठीक है, ये सब वो है, ये कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। ठीक है, लिखवाने के लिए आप लोगों को लिखवाना होता है इन सब की। जैसे किसी बच्चे ने कल मुझसे पूछा था, सर मैं क्या पढूं, मैंने बोला आपने एनसीईआरटी पढ़ी? बोला हाँ मैंने पढ़ी। मैंने कहा बस वहीं रुक जाओ। आपने पूछा था शायद ना, मैं आपको मजाक में नहीं कह रहा, मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ। हम लोग एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं पढ़ते, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। मैंने शायद कल्चर में बताया था कि एक वर्ड है, कहीं पढ़ा हमने, पंचायतना वर्ड पढ़ा था, तो आपने बताया मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैंने कहीं दोबारा पढ़िए आपको मिलेगा, मिला आपको अगले दिन। तो वहां पे हमको एनसीईआरटी से हमको चीजें निकालनी होती है। इन सब किताबों में क्या है कि इन सब किताबों में कि हम लोगों को एक चीज दी, उसको पूरा एक्सप्लेन करके मोटा मोटा हेडिंग करके हमारी मेहनत कम कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये किताबें हमारी मेहनत ज्यादा करती हैं। क्यों? एनसीईआरटी में मुझे पढ़ना है 5 पन्ने, और वही चीज इसमें 50 पन्ने में आ रही है। ठीक है, अभी आके हम लोग आगे चल के ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, जलमंडल पढ़ेंगे। ओशिनोग्राफी में एक चैप्टर आता है ओशन करंट, ठीक है, ओशन टाइड, ओशन वेव्स। ठीक है, आप लोग कहीं भी कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किताब उठाइए। 4 पन्ने ओशन करंट के हैं, 2 पन्ने टाइड के हैं और वेव्स के हैं। उसके अलावा यूपीएससी की हिस्ट्री में उसके बाहर कभी नहीं पूछा है। ऑप्शनल की बात कर रहा हूं मैं, जीएस की बातें छोड़िए। अगर ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है ना, उसके अलावा नहीं आता। जीएस में तो उसके अलावा कभी आ ही नहीं सकता। 4 पन्ने हैं, लेकिन वो है हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि हमें और पढ़ना है और पढ़ना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि मतलब तो अपनी जो मेहनत है ना, उसको स्ट्रक्चर तरीके से बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट करिए। हम लोग चाहते हैं कि हम ये पढ़ लिया हम लोगों ने पूरा, लेकिन हमें ये नहीं पता, तो हमें एक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। एनसीईआरटी में एक एक वर्ड, एक एक जो डायग्राम है,
मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी में ऐसे करके दिया होगा, क्योंकि मेरे से बना ही ऐसे है, उसमें ऐसे कुछ बना हुआ लाइंस, स्टार मार्क्स, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है। एनसीईआरटी में वो चीज़ बनी हुई है, हमने उस डायग्राम को देखें ना, देखें समझें, तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग बड़ी बड़ी किताबें मत जाइएगा, मार्केट में हजारों किताबें मिल रही हैं। एक मंत्रा याद रखिए जो मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान याद हुआ, मुझे समझ में आया, जितनी कम किताबें आपके पास तैयारी के सामने दिखेंगी उतना आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपको जिस दिन आपको दिख गया ना मेरे सामने इतनी सारी किताबें, ज्यादा किताबें हो रही हैं, मतलब आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग उतनी ही कम होती चली जा रही है। ये आप लोग अगर मेरा मंत्रा ये था, मुझे बाद में समझ में आया, एक दो अटेम्प्ट दिए, मैंने कहा हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। मतलब पहली बार मैंने पीटी दिया तो मेरे पास खूब सारी किताबें थी, मतलब पहली बार जब मैंने पीटी दिया तो उसमें करंट का टाइम चल रहा था, और हमारा क्या था कि करंट में क्रॉनिकल सारी पढ़नी है, ठीक है, दो तीन सोर्सेज और पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं। तो मेरे पास बताइए, मेरे पास 27 किताबें हो गई थी करंट अफेयर्स की, 27 किताबें, ढेर लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जीएस का बाकी तो पढ़ना ही पढ़ना है। उस समय ऑप्शनल भी आ रहा था, उस साल वो लास्ट ईयर था ऑप्शनल का, ऑप्शनल भी आया। मैंने कहा मैंने हुआ क्या है, कर क्या रहा हूँ मैं, हाँ। तो वो मेरा साल कटा था, मैं पहला पीटी मेरा कट गया, मैं हुआ क्या ये चीज़, पहला साल कट गया। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये जो 27 किताबें पढ़ी है ना, ठीक है, इन्हीं से एक कट गया मेरा। अगले साल मैंने एक किताब नहीं पढ़ी। सब लोग बोल रहे थे अरे क्या कर रहा है तू, स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, ये चेंज कर, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़नी किताबें, मैं चुपचाप बैठा। और मैंने मतलब कि 3-4 महीने बताऊं, जैसे मेरा फेल हुआ, मैंने कहा ये हुआ क्या, 2 दिन रोए धोए, उसके बाद फिर बैठे, ठीक है। पीटी मीन्स इंटरव्यू के बाद यही होना है, आप लोग का फेल ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे डार्केस्ट नाइट्स होती है वो रोए धोए बैठे। फिर हमने सोचा कि हुआ क्या, मुझे देखा मेरे कोई भी नोट्स कंपाइल नहीं थे, कोचिंग के नोट्स अलग थे, पर्सनल नोट्स अलग है, एनसीईआरटी अलग है, रेफरेंस अलग है, हिस्ट्री में यही, पॉलिटी में यही, इको में यही, हर सब्जेक्ट में यही चीज़ चल रही है। इको तो मुझे समझ में ही नहीं आई थी, क्योंकि कोचिंग में समझाई नहीं गई थी। क्यों नहीं समझाई गई थी, 300 का बैच है, ठीक है, और टीचर आया, उसने बोला इन्फ्लेशन पता है, अब 250 में 4-5 लोगों को तो पता होगा ही ना, सर पता है, ठीक है, आगे बढ़ गए। टीचर्स भी कभी कभी स्किप कर जाते हैं। एक दो बार मैंने हिम्मत करके पूछा भी, मतलब बात हिम्मत की नहीं है, बात वो होती है आप कितना पूछेंगे हर चीज़, जब टीचर आपका स्किप कर रहा है। तो मेरा एक वीक हो गया था, तो मैंने सोचा हुआ कि मेरा पीटी क्यों कट गया, पीटी तो नहीं कटना चाहिए था, एग्जाम कभी कटता ही नहीं है, क्यों कटा मेरा पीटी, मैं पीटी फेल क्यों हुआ। मैं बैठा, मैंने 2.5 से 3 महीना मैंने कुछ भी नहीं किया। मेंस का टाइम चल रहा था मेरा, मेंस हुआ नहीं था, हाँ। तो मैंने जब तक मेंस तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नोट्स कंपाइल किए हैं और कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल निकला कि बाद की सारी चीज़ें स्टेजेस आपकी आसार हो गई। उसमें क्या हुआ, पीटी के नोट्स एकदम अलग बने, मेंस के नोट्स एकदम अलग बने, आंसर फॉर्म में सारी चीज़ें बनी, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हो गई। जो चीज़ें मेरी चार जगह फैली हुई थी, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं हिस्ट्री के लिए क्या किया, शुरू में क्या पढ़ रहा था, एनसीईआरटी, ठीक है, बिपिन चंद्रा और क्लास नोट्स, ठीक, सब जगह अलग अलग चीज़ें हो गई, हाँ। एक चीज़ का मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा सब लोग बोल रहे थे एनसीईआरटी उठाएं, ठीक है, मुझे एनसीईआरटी समझ में नहीं आई हिस्ट्री की, मुझे बिपिन चंद्रा समझ में आई क्योंकि वो स्टोरी फॉर्म में है। मैंने क्या किया, एनसीईआरटी उठाई, पहले मैंने पूरी बिपिन चंद्रा पढ़ी, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को पढ़ा। जो चीज़ें मुझे बिपिन चंद्रा में नहीं दिख रही थी, जो एनसीईआरटी में थी, मैंने उसमें ऐड कर ली बिपिन चंद्रा में, फिर मैंने एनसीईआरटी किनारे कर दी। फिर मैंने क्या किया, क्लास नोट्स उठाए। जब एक बार बिपिन चंद्रा हो गई और एनसीईआरटी हो गई, तो क्लास नोट्स में कुछ और इन्फॉर्मेशन बस रह गई थी, वो भी मैंने ऐड की, और मैंने क्लास नोट्स भी फेंक दिया। उसके बाद से लेके मैंने कभी भी कोई किताब नहीं पढ़ी। सेम चीज़ मैंने इको में की, सेम चीज़ मैंने पॉलिटी में की, सेम चीज़ ज्योग्राफी तो मुझे नहीं करना था क्योंकि वो मेरा काफ़ी पहले से था, उसके नोट ऑलरेडी कंपाइल थे, ठीक है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कंपाइल किया और उसमें इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया। मैं आपको इन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कंपाइल किया
और उसमें इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया। मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रोक के इतना बड़ा लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग इस तैयारी में हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा एग्जाम है तो छोटी छोटी हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों का ही एग्जाम है। पीटी में भी आप लोग यही देखेंगे, मेंस में भी आप लोग देखेंगे कि आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन साइंस स्टडी में आपका पढ़ा हुआ आया ही नहीं। आप लोग चीज़ फेस करेंगे जब आप लोग मेंस देंगे तो आप लोग देखेंगे क्या कल्चर में कुछ आया ही नहीं, ज्योग्राफी में जो आया वो हम लिख नहीं पाए। आप लोग जब पहली बार लिख के आएंगे, आप लोगों को मैं होप करता हूँ ये प्रॉब्लम आप लोग ना मतलब निकलने के बाद ना बोलें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है 101%। या कल्चर पढ़ा हुआ नहीं आया, साइंस से पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से पूछ देते हैं। ज्योग्राफी में यार पूछा तो सुनामी है, ढंग से लिख नहीं पाए। क्यों नहीं लिख पाए? पूछा तो हमने ऐसे, कल मैं बता रहा था, कुछ इंसुलेशन पूछा नहीं लिख पाए, हीट बजट पूछा नहीं लिख पाए। हाँ, सही सारे पॉइंट्स नहीं आए। वो है लैक ऑफ प्रिपरेशन। आप बोलेंगे 12 घंटा पढ़ा आपने, 12 घंटा आपने पढ़ा लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। पीटी में भी कम किताबें रखिए, मेंस में भी कम किताबें रखिए, ऐसे में आपके कंपाइल नोट्स होने चाहिए, हर टॉपिक के आपके नोट्स होने चाहिए। ऐसे को प्रिपेयर करिए। ऐसे को मत समझिए 1000 वर्ड वहीं जाके लिखने हैं, नहीं, आप यहाँ पे लिखें, पहले 1000-1200 वर्ड लिखें। ठीक, मैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ कि मतलब कि उनका शुरू में ऐसे बहुत वीक था, दे पुट द एफर्ट ऑन इन द ऐसे, उसके बाद ऐसे आपको मतलब मार्क्स आपके बूस्ट अप करता है। जब आपके एकदम समझ लीजिए 170 आ जाएंगे, 150 आ गए, तो आपका तो भैया एक ऑप्शन मतलब आपका हो गया, पूरा कवर हो गया आपका। ठीक है, तो आप हर चीज़ पे फोकस करें। ये एग्ज़ाम ज्योग्राफी का है ही नहीं, कल्चर का है ही नहीं, आपने सबको देखना है और सब में आपको ये से बारीकियां देखनी है। यही मेहनत है। मेहनत ये नहीं है कि इतने सारे पेपर हैं, 10 पेपर और लगा लीजिए, ठीक है, उससे कुछ नहीं हो रहा, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। मेहनत क्या होती है, हमको यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान देना है। आप में से मतलब सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, लेकिन मैंने सबको समझाया है चीज़। आप लोग हर एस्पेक्ट में, प्रिपरेशन के एस्पेक्ट में आप इसको अप्लाई करें, अक्रॉस द प्रिपरेशन को अप्लाई करें आप लोग, तो मतलब कि चांसेस बढ़ेंगे आप लोगों के सिलेक्शन में, रिकमेंडेशन में। ठीक है, नहीं तो हर साल वो लिखा आता है नॉट रिकमेंडेड। सबसे बड़ी बेइज्जती होती है मार्च में सोसाइटी में ठीक है, तो वो बेइज्जती ना हो ना, मार्च की जगह अप्रैल में रिजल्ट आए कि यार यू आर थ्रू। ठीक है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग कंपाइल कर लीजिए, अपने नोट्स को फैलाइए नहीं। ठीक है, मैं अपने फिर से उसको कर रहे हैं, मैंने अन्य कर दिया। निम्न अक्षांशीय हो गया, लिख लिया था मैंने। क्या लिख पाया मैं निम्न अक्षांशीय में? हाँ जी, सूर्य की किरणों की ऊर्जा प्रति क्षेत्र में सबसे अधिक गिरती है, साथ ही निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में सूर्य किरणों को वायुमंडल का कम क्षेत्र पार करना होता है, जिस कारण ऊर्जा का ह्रास सबसे कम होता है। इन कारणों से सबसे अधिक ऊर्जा निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में सूर्य किरणें निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के मुकाबले तिरछी होती हैं,
साथ ही साथ उन्हें वायुमंडल का अधिक भाग तय करना पड़ता है, अधिक भाग तय करना पड़ता है। इन कारणों से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के मुकाबले कम ऊर्जा प्राप्त होती है, कम ऊर्जा प्राप्त होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सूर्य किरणें अधिकतम तिरछी होती हैं तथा उन्हें अधिकतम वायुमंडल का क्षेत्र पार करना पड़ता है, जिस कारण ऊर्जा का ह्रास अधिकतम होता है, ह्रास अधिकतम होता है। इस कारण से ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे काफी सारी चीजें हम उनको कल लिखते हैं। ठीक है, आगे काफी सारे फैक्टर्स हैं, अभी और फैक्टर्स है ना, हम लोग एक चीज नहीं समझ लेते हैं। ठीक है, अभी काफी सारे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अभी नेक्स्ट लिखवाया था मैंने, ड्यूरेशन, अवधि, उसके बाद डिस्टेंस वाला भी बताया था, फिर विंड, और उसके बाद ओशन करंट, उसके बाद एल्टीट्यूड, उसके बाद ओशन से क्या डिस्टेंस है, ये सब लिखना है अभी हम लोगों को। इसको थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं, एक हम टॉपिक समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। क्या है? वायुमंडलीय दबाव और दाब पेटियां। समझें अभी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट, वायुमंडलीय दबाव एवं वायुमंडलीय वायुमंडलीय दबाव एवं दाब पेटियां। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम है, जिसमें दो चीज पढ़नी होगी। पहला चीज बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है प्रेशर बेल्ट। इसमें एक एक चीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आई, आगे आपको विंड समझ में नहीं आएगा, और काफी सारी चीजें हैं आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। आगे जाके हम लोग मौसम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि कम से कम 12-14 टाइप का मौसम हो रहा है, हम वो पढ़ेंगे, वो समझ में नहीं आएगा अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। ठीक है, तो एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ें। जहां पर भी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज उसको वहीं रोकें और उसको समझने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, सिंपल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स गिर रहा है,
कितनी किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स गिर रहा है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कितनी किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स गिर रहा है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। सिंपल चीज, क्लियर हुआ चीज ये। किसी पर्टिकुलर एरिया पर हम लोग कितना कितना हम लोगों ने फोर्स लगाया, हाँ, कितना हमने भार रखा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर हमारा कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा प्रेशर कम होगा। क्यों, कैसे समझने की कोशिश बताएं मुझे, इसको यूज करके मुझे बताने की कोशिश करें। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम क्यों होगा? अच्छा हाँ ठीक है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हाँ ठीक है, बहुत टेक्निकल, हम सिंपल समझ लेते हैं, सिंपल चीज। ठीक है, सिंपल चीज समझ लेते हैं। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, दो चीजें हो सकती हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, मान लीजिए तवे वाली बात है, ठीक है, या फिर समझ लीजिए ये पूरा एरिया है, हाँ, नीचे से गर्म हो जाए, ठीक है, तो इसकी ऊपर की हवा ठंडी रहेगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हवा हल्की होती है कि भारी होती है, हल्की होती है, वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है, इस ये वाला ब्लॉक टाइल्स जो है, इस पे मुझे प्रेशर नापना है। ठीक, तो प्रेशर ज्यादा कब होगा, एरिया तो ये हो गई 2x2 की, ये एरिया हो गई मेरी, हाँ, उस पे क्या है प्रेशर, मतलब क्या होगा, अगर हवा नीचे आएगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मैंने नीचे से कुछ गर्माहट डाल दी तो इस टाइल के ऊपर की हवा कैसी होगी, गर्म हो गई। गर्म हवा कैसी होगी, हल्की, वो नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी ना। तो इस टाइल पर प्रेशर ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कम हो गया। तो इसी तरीके से हमारा जहां पर भी गर्मी होगी वहां पर हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहीं पर अगर मैं यहां पर मैं एसी चला दूं, ठीक है, या टेम्परेचर में डाउन कर दूं, तो हवा कैसी हो जाएगी, हाँ, हवा हो जाएगी मेरी ठंडी। ठंडी हवा क्या होती है, हल्की की भारी, भारी होती है, वो नीचे जाएगी तो टाइल पे धक्का मारेगी। धक्का क्या होता है मेरा, फोर्स, फोर्स मेरा बढ़ा, प्रेशर मेरा बढ़ गया। सिंपल चीज, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये सारा चीजें वो आप लोग जब वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें अप्लाई करें आएगा। वो कॉन्सेप्ट जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सिंपल टर्म से समझा कि अगर हवा का हम लोग को देखना है, हम लोग को हवा से मतलब है, बस हवा पानी से मतलब है ज्योग्राफी में, कुछ नहीं। तो क्या मैंने कहा, गर्म एरिया में हवा ऊपर जाएगी तो नीचे सरफेस पे प्रेशर कम हो जाएगा, और ठंडी एरिया में हवा तो प्रेशर, ठीक है, जहां जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां वहां प्रेशर मेरा कम हो जाएगा, जहां टेम्परेचर कम है वहां मेरा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये तो सिंपल एक रूल है। अगर मैं इस रूल को ग्राफ के हिसाब से बनाऊं, ठीक है, मतलब ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, हाँ, अगर मैं टेम्परेचर का बनाऊं, टेम्परेचर का ग्राफ, तो ये कैसे जाना चाहिए बताएं, ऐसे जाना चाहिए, सही तो बनाया, क्यों भैया, ये लैटिट्यूड है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री है। ग्राफ कैसे होता है भाई, 1 डिग्री पे क्या टेम्परेचर, वन, ये तो दो चीज है, तो दो वेरिएबल्स हैं, 2D मैंने बना दिया, ठीक है।
तो अगर मैं यहां पर प्रेशर को बनाऊं, मैं प्रेशर को भी बनाना चाहता हूं, तो वो मेरी क्या लाइन होगी बताएं? अगर मुझे, सर छोड़िए, मैं यहां से कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सही बनाया मैंने, ये प्रेशर है, तो बताएं प्रेशर की लाइन कैसी होगी? हाँ जी, सही गलत है ये भी गलत है, लेकिन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से सही है, जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है, 1-2 बार इसने यूपीएससी ने पूछ रखा है कि जैसे जैसे हम लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड जाते हैं, हमारा प्रेशर कंटिन्यूस बढ़ेगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कंटिन्यूस बढ़ेगा, स्टैटिक रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, हमें कंफ्यूज करता है। हम लोग अगर ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है, हम फिजिक्स पढ़ के आ गए, तो टेम्परेचर प्रेशर को रिलेट किया, हाँ भैया सही है, मार के आ गए, ठीक है। ये चीज समझे आप, ग्राफ समझ गए? ये ग्राफ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड जाते हैं, हमारा टेम्परेचर घटता चला जाता है। फिजिक्स का नियम क्या बोलता है कि हमारा इसी हिसाब से हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहां पर और यहां पर तो सही रहता है ये चीज, बीच में चीजें गड़बड़ा जाती हैं, बीच में हमारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। हमको वही चीज पढ़नी है कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक। एक्चुअल में डायग्राम कैसे बनेगा, मैं आपको फिर से बना के दिखा रहा हूं। एक्चुअल डायग्राम ऐसे बनेगा प्रेशर का, हमारा एक्चुअल डायग्राम ऐसे बनेगा प्रेशर का, ठीक है। क्लियर होगा चीज ये? कम प्रेशर कहां पर है, आप बताएं, आप बताएं कम प्रेशर कहां पर है? अगर मैं लोअर एरियाज बोलूं, लोअर एटीट्यूड या निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में, ठीक है। देखिए देखिए आप लोग ध्यान दें, मैंने कभी भी जीरो को मैं जीरो तक लेके नहीं जा रहा हूं ना। तो लोअर लैटिट्यूड या निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में कैसा प्रेशर है हमारा, ठीक है। और ये जो एरिया है, यहाँ पे हमारा जो, हम थोड़ा सा और मिडिल लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमारा प्रेशर कैसा हो जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। फिर हम और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा प्रेशर कैसा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। हम और आगे जा रहे हैं, 90 डिग्री के आसपास जा रहे हैं, अराउंड द पोल्स, अराउंड द ध्रुवीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो हमारा प्रेशर फिर से बढ़ जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि हमारी पट्टियां बन रही हैं, बेल्ट बन जा रही है हमारी, एक ये, एक ये, एक ये, 4 बन गई, ठीक है। मैं आपको दूसरे डायग्राम से समझाऊंगा तो काफी लोग और अच्छी सही से समझ पाएंगे। ये मेरा एक अर्थ है, ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है। अभी मैं कहीं, बस मैं 0 डिग्री बना दिया है, अभी मैं कहीं भी कोई फिगर नहीं लिख रहा हूँ। धीरे धीरे करके हम सारे लैटिट्यूड्स को और जानेंगे कहाँ पे एग्जैक्टली क्या है। अभी हम एक चीज बस समझने के लिए ये चीज बना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इसमें बड़ा ड्रॉबैक है।
अच्छा हरा ना, ठीक है। ये एक पट्टी हो गई हमारी। दूसरी पट्टी हो गई हमारी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को अर्थ पे दिखेगा, महसूस होगा हम लोगों को। ठीक है, क्या महसूस होगा? हम दूर से देखेंगे। टेम्परेचर तो हम लोगों का जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे, टेम्परेचर हमारा कंटिन्यूसली कम होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा प्रेशर में क्या होगा? लो प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई। ठीक है, इस तरीके से हमको दिखेगा। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से आगे, इक्वेटर के अराउंड कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। बीच में हम लोगों का मिक्सिंग रहेगी, हम लोगों को पता नहीं चलेगा। एकदम से हम लोग कहीं एरिया में जाएंगे, वहां पे हमें एकदम से क्या दिखेगा? हाई प्रेशर उस एरिया में। ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रेडेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा प्रेशर ऐसे गिर रहा है, नहीं ऐसे चल रहा है, नहीं। हम लोगों को एक लो प्रेशर का एरिया दिखेगा, बीच में हम लोगों को कोई एग्जैक्टली कोई डिफाइन नहीं कर सकते। फिर हम थोड़ा सा और यहाँ पे जाएंगे, हमें एकदम से क्या दिखेगा? हाई प्रेशर दिखेगा। फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें एक पट्टी दिखेगी, वहां पर क्या होगा? हमारा प्रेशर। फिर हम और आगे जाएंगे, एकदम से हमें क्या दिखेगा? हाई प्रेशर। सिमिलरली साउथ में यहाँ पे ये लो प्रेशर दिख रहा है, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हमको एकदम से किसकी पट्टी दिखेगी? और आगे जाएंगे कौन सी पट्टी दिखेगी? और नीचे जाएंगे तो कौन सी पट्टी दिखेगी? हिंदी में से बोले हैं निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी। ये क्या है? निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी। क्लियर होगा चीज ये? ठीक है, बताइए इसमें कोई किसी को डाउट आया? अभी हमने पट्टियों के नाम नहीं पढ़े हैं, सिर्फ हमने देखा है कहाँ पे कौन सी पट्टी मिल रही है। इनके नाम है वो हम आगे देखेंगे। बताएं किसी को कोई डाउट हो? ऑल क्लियर? क्लियर सबको? हाँ बताएं। थोड़ा सा डाउट था हाँ कि बताएं, हाई जब क्यों हो रहा है? हाँ तो दोबारा लो प्रेशर क्यों हो रहा है? लेकिन I'm sure इसके और फैक्टर्स होंगे जो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, हाँ ये एकदम एकदम ये आगे तो समझना ही है हमको। ठीक है, ये जो अभी ड्रॉ हुआ है वो समझ में आ गया? प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल चीज, हम एकदम सिंपल सिंपल। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एक चीज हमने पढ़ ली। और प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? इनवर्स। अगर टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम। ये सिंपल रिलेशन है हम लोगों का। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लोअर 0 से हम 90 डिग्री जाएंगे, टेम्परेचर हमारा कंटिन्यूसली कम होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा प्रेशर में नहीं होता है, प्रेशर में हमको पट्टियां मिलती हैं। ठीक है, और ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर की, ये कहाँ की बात कर रहे हैं बताइए? हाँ, अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर है भाई। एक तो ये एरिया हो गई, एक ये वाली एरिया हो गई, दोनों एरिया अलग अलग है ना। तो ये जो अर्थ का सरफेस है और ये हमारा एटमॉस्फेयर का हाइट है। ठीक है, अभी हमने एटमॉस्फेयर के बारे में काफी सारी चीजें पढ़नी है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा है वो चीज। तो हम लोग ये जो पट्टियां बनी हैं ये कहाँ बनी हैं? सरफेस पे बनी है। ठीक है, सरफेस पे जो सरफेस पर जो एटमॉस्फेयर है उसकी बात हो रही है, जो सरफेस से दूर एटमॉस्फेयर उसकी बात नहीं हो रही है। क्लियर होगा चीज ये? ठीक है, ठीक।
हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई क्लियर डाउट? ठीक है, अब इसको डाउट हटा रहे हैं। पहली चीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि लोअर लैटिट्यूड में लो प्रेशर क्यों होता है। बहुत ही सिंपल चीज है। क्या है कि अभी हमने पढ़ा, ये 0 डिग्री एरिया है, लोअर लैटिट्यूड है। हाँ, यहां पर हमने एक फैक्टर लिखा सिंपल, यहां पर जो सूर्य तक कैसे कर रहा है इंसुलेशन, डायरेक्ट, और सबसे कम एरिया कवर कर रहा है एटमॉस्फेयर की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको यही मिल रही है। तो सबसे ज्यादा गर्मी जहां पड़ेगी वहां की हवा कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म हवा कहां गई, जब हवा ऊपर गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। पहली चीज समझ में आ गई हम लोगों को कि लो प्रेशर क्यों है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अभी हमने देखिए एटमॉस्फेयर नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं, एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली सब लेयर होती है तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं, शोभ मंडल। ठीक है, हवा ऊपर गई, इस ये क्या है हमारा लेयर, क्या है, अभी हमें लेयर्स पढ़नी है। ठीक है, शोभ मंडल तक पहुंची, हवा यहां से उठी, ऊपर जाके लगी, टकराई, छत को क्रॉस कर जाएगी हवा, नहीं करेगी ना। हवा क्या, जब यहां से निकली ऊपर गई तो कहां जाएगी, इधर फैल जाएगी। ठीक है, अब यहां से हवा उठी, शोभ मंडल के ऊपर जाके टकराई और फैल गई। ठीक, इसके बाद जो होना है उसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया चीज ये। अभी तो हमने क्या समझा, लो प्रेशर लो लैटिट्यूड में जो होता है वो हमने समझ लिया। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ज्यादा एनर्जी गिरी, हवा गर्म हो गई, ऊपर गई, शोभ मंडल पर टकराई, हाँ, शोभ मंडल की ऊपरी लेयर पर टकराई और हवा फैल गई। ठीक, इसके बाद जो होगा उसको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कोरियोलिस फोर्स। क्या समझना पड़ेगा, कोरियोलिस फोर्स समझना पड़ेगा। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, इससे हम समझ सकते हैं 2v ओमेगा साइन थीटा। क्या होगा, 2v ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बताएं साइन कितने होते हैं, साइन 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 साइन 90 बताएं, साइन 0 साइन 90, ये वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री से हमको पता चला है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 कुछ होगा, हमें वी आर नॉट कंसर्न, साइन 45 वी आर नॉट कंसर्न, साइन 60 वी आर नॉट कंसर्न, साइन 90 कितना है, 1 है, साइन 90 डिग्री 1 है। क्लियर हो गया चीज ये। v होता है वेलोसिटी। अब होता है वेलोसिटी होती क्या है, क्या होती है वेलोसिटी। मैं अगर बोलूं कि मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो ये स्पीड है कि वेलोसिटी है, स्पीड है। वेलोसिटी में क्या ऐड हो जाता है, डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं कि मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं ईस्ट में जा रहा हूं, या मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट में जा रहा हूं, दोनों एक ही बात है। सेम वेलोसिटी मेरी सेम हुई या अलग अलग हुई, क्यों अलग है, डायरेक्शन मेरी अलग है। उसमें स्पीड की जो क्वांटिटी तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो अगर मेरी जो वैल्यू चेंज ना हो और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये क्लियर हुआ चीजें। अगर मेरी टू बेकार चीज है, ये बेकार चीज है, हमें किस पे फोकस करना है, v और साइन थीटा पे फोकस करना है।
v और साइन थीटा पर फोकस करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझे हम लोग। कोरिलेटिव फोर्स क्या होता है? 2v ओमेगा साइन थीटा। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। साइन थीटा क्या है? साइन 0 डिग्री 1, साइन 0 0, साइन 90 1 है। क्लियर हो गया चीजें? अब हमें देखना है कोरिलेटिव फोर्स क्या होता है। कोरिलेटिव फोर्स ये होता है कि हमारी जो अर्थ रोटेट हो रही है, हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, तो उसकी वजह से हमको मतलब कोई भी चीज जो चल रही है उसको उस पर धक्का लगता है। वो इमेजिनरी धक्का होता है। धक्का हमको ऐसे कहीं दिखेगा नहीं धक्का लग रहा है, लेकिन वो महसूस होगा हमें धक्का। ठीक है, तो ये वही कोरिलेटिव फोर्स है। अर्थ के रोटेशन से कोई चलती हुई चीज पे जो धक्का हमें महसूस हो उसे हम कहते हैं कोरिलेटिव फोर्स। आप लोग ध्यान दीजिए, ये कोरिलेटिव फोर्स किस पे लगेगा? अगर मैं रुका हुआ हूं तो मुझ पे लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे ही कोई चीज चलेगी उस पर धक्का लगेगा। v है ना, तो v में स्पीड प्लस डायरेक्शन भी तो है। v क्या है मेरी? अगर मेरी स्पीड 0 हो जाए तो cf क्या हो जाएगा? मेरी अगर जैसे ही मैं रुक गया मुझ पे कोरिलेटिव फोर्स नहीं लगेगा, जैसे ही मैं चलूंगा मुझ पे कोरिलेटिव फोर्स लगेगा। सब पे लगता है, लेकिन क्या होता है हम लोगों का वजन थोड़ा सा ज्यादा है तो हमें महसूस नहीं होता कोरिलेटिव फोर्स। अगर इसी वजन से मैं बहुत तेज चलूंगा ना, बहुत हाई स्पीड पे, तो मुझे कोरिलेटिव फोर्स महसूस हो जाएगा। हवा क्या होती है? हल्की होती है, वो थोड़ा सा चलती है ना तो उस पर कोरिलेटिव फोर्स ज्यादा असर करता है। कोरिलेटिव फोर्स असर करता है मतलब क्या होता है? उस पर धक्का लग रहा है, उस पर धक्का लगना। सिंपल चीज है, कोरिलेटिव फोर्स क्या करता है? धक्का मारता है। ठीक है, अब जब वो धक्का मारेगा तो धक्का देखिए दो तरीके से लग सकता है। या तो मैं चल रहा हूं, कोई मुझे धक्का दे और मेरी स्पीड बढ़ा दे, जल्दी चलो जल्दी चलो। या धक्का कैसा हो सकता है? मुझे पकड़े कोई ऐसे कर दे। मेरी बात समझे? आप इधर आइए, आप इधर आइए, सब लोग समझे कोरिलेटिव फोर्स कर क्या रहा है और कोरिलेटिव फोर्स क्या नहीं करता। आप इधर खड़े हुए, ठीक है, आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप चलें थोड़ा इधर और मैं इनको धक्का मारूं कस के। ठीक है, इधर आए, हाँ, और आप चलिए इधर, इधर टर्न करें, आप चलिए और मैं इनको ऐसे कर दूं। ठीक है, दो धक्के हो गए, दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं। आप बैठे, एक क्या कर रहा है? स्पीड बढ़ा रहा है, और एक क्या कर रहा है? स्पीड तो सेम रख रहा है, बस क्या चेंज कर रहा है? दोनों में वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी हमारी दोनों में चेंज हो रही है, लेकिन एक में मेरी स्पीड बढ़ रही है, एक में मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो कोरिलेटिव फोर्स होता है वो स्पीड में चेंज नहीं लाता है। वो क्या करेगा? मोड़ देगा लोगों को। कोई भी चलती हुई चीज को मोड़ देता है, धक्का मार के मोड़ देगा। अब किधर मोड़ेगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट में मोड़ देगा, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मोड़ देगा। आपको बस ये क्या ध्यान रखें, मैं या आप लोगों से अगले एक हफ्ते में जितने भी क्लासेस होंगे, हफ्ते 15 दिन में, आप लोगों को बार बार एम्बेरस करूंगा, क्योंकि बार बार चीजें बनेंगी, हवा चलेगी, पानी मुड़ेगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा आप ये कहाँ जाएगा पानी, ये हवा कहाँ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ क्या क्या ध्यान रखना है? कोरिलेटिव फोर्स ध्यान रखना है। कोरिलेटिव फोर्स में क्या? नॉर्थ में राइट, साउथ में लेफ्ट। नॉर्थ में धक्का कहाँ लगेगा? साउथ में कहाँ लगेगा? बस हमें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हवा पानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, अगर आप कोरिलेटिव फोर्स ध्यान में है। बाकी सारी चीजें टेक्निकल चीजें किताबों में लिखी होंगी ना, उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन टिक करना है, तो हमारे कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए। हमें वर्ड्स, ये चीज आप मेंस में भी लिख ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखें, किताब की लैंग्वेज याद कर लीजिए, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना है। कोरिलेटिव फोर्स मतलब 2v ओमेगा साइन थीटा। v मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। हमारा कोरिलेटिव फोर्स क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर मेरी स्पीड 0 हो गई तो मेरा कोरिलेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज रुकी है उस पर कोरिलेटिव फोर्स लगेगा?
नहीं लगेगा। जैसे ही स्पीड चलना शुरू होगा कोरियोलिस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी उस पर कोरियोलिस फोर्स मतलब क्या है कि अब कोरियोलिस फोर्स स्पीड तो बढ़ाएगा नहीं, वो क्या करता है, तो कोरियोलिस फोर्स पहले धक्का देगा, वो चीज मुड़ी तो उस पर और कोरियोलिस फोर्स लगेगा, वो और मुड़ेगा। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि उस पर जैसे जैसे मुड़ेगा उस पर धक्का और तेज लगना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ चीज मुड़ गई तो उसको पूरा मोड़ देता है। क्लियर होगा चीज ये? अब हम आते हैं साइन थीटा पर। ये मेरा अर्थ है, ये क्या 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री है, ठीक है। यहां से हम लोग बढ़ते चले गए। 0 डिग्री पर साइन थीटा क्या है 0। तो कोरियोलिस फोर्स मेरा इक्वेटर या लो लैटिट्यूड में नहीं लगेगा। जैसे जैसे मेरे अक्षांश बढ़ते चले जाएंगे, मेरा लैटिट्यूड पे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे मेरा कोरियोलिस फोर्स बढ़ता चले जाएगा। मैक्सिमम कहां पे लगेगा, पोल्स पे 1। मैक्सिमम कहां लगा, 1 कहां लगा, पोल्स पे लगा। तो अब मुझे बताएं कोरियोलिस फोर्स से हमने क्या क्या चीज सीखी। हमने अभी कोरियोलिस फोर्स में क्या क्या चीज सीखी, पहले फॉर्मूला बताएं। 2v ओमेगा sin थीटा, ठीक है, वो हमारे डायरेक्शंस को चेंज करता है, हमारी स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं लाता। ठीक है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में राइट में और साउदर्न में लेफ्ट में और नॉर्दर्न में राइट में डायरेक्शन देता नॉर्थ राइट साउथ लेफ्ट, है। ठीक है। और इक्वेटर पे 0 और मैक्सिमम पोल्स पे 1। रुकी हुई चीज पे जैसे जैसे कोई चीज वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोरियोलिस फोर्स मेरा, क्लियर होगा चीज ये? बताइए, क्लियर होगा सबको? कोरियोलिस फोर्स समझ में आ गया? हाँ, कोई डाउट है तो बताएं। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि कोरियोलिस फोर्स मेरा डायरेक्शन चेंज करेगा कहां पर, नॉर्थ में कहां, आप आइए। पॉइंट इज नॉट टू एम्बेरस एनीवन, पॉइंट इज कि आपको क्लियर है कि नहीं। इस पे कोरियोलिस फोर्स लगा के हर एक की डायरेक्शन बताएं। ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। दूसरा ये यहां से करें, ठीक है। अरे चेंज ही नहीं हुआ, रुकिए। हाँ आप करें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी के मतलब ठीक है। हाँ बने, नहीं चलेगा। ठीक है, सभी सही है, ठीक है, सभी क्लियर है। किसी को ड्रॉ बनाया है कोई, किसी को कोई डाउट है कि ऐसा क्यों हुआ? क्लियर होगा चीज ये? नॉर्थ में कहा इन्होंने हर जगह मोड़ा है राइट, अपना राइट नहीं, ऑब्जेक्ट का राइट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका राइट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका राइट। और इसमें क्या है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका लेफ्ट। अगर हमें ये क्लियर हो गया, हमें हवाएं कैसे चल रही हैं, वो क्यों ऐसे चलती हैं, पानी कैसे मूव कर रहा है, सब चीज हमें क्लियर हो जाएगी अगर हमें ये क्लियर हो गया। कोरियोलिस फोर्स क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला चीज समझते हैं कि हाई प्रेशर कैसे बना। हमारा हाई प्रेशर कैसे बना? लो लैटिट्यूड के बाद मैंने बताया था ना, हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है, ध्यान है वो पट्टी, ध्यान है। एक लो लैटिट्यूड की, लो प्रेशर की पट्टी थी, उसकी दोनों तरफ क्या थी, हाई प्रेशर की पट्टी थी ना, वो हम समझते हैं। फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं
0 डिग्री, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया हमारा, यहाँ पे हमारा, सॉरी इसको नहीं करते हैं अभी हाई प्रेशर, यहाँ पे हमारा, सॉरी इसको नहीं करते हैं अभी हाई प्रेशर, यहां से हवा उठी। मैं दो हवाएं क्यों बना रहा हूं, दो, एक साउथ से आ रही है, एक कहां से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, दो आगे यहां पे आए, ट्रोपोस्फेयर की अपर बाउंड्री में आके टकराए और हवा मेरी इधर मुड़ी और यहां पे मुड़ी। ठीक है, हम एक को लेके चलते हैं, दूसरा हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग नॉर्थ को लेके चल रहे हैं, नॉर्थ में हवा यहां पे पहुंची, कोरियोलिस फोर्स क्या है, 0, 2v ओमेगा साइन थीटा इज साइन 0 डिग्री इज 0, तो कोरियोलिस फोर्स इज 0। जैसे ही हवा इधर मुड़ी, वेलोसिटी मेरी बढ़ गई और लैटिट्यूड मेरे बढ़ना शुरू हो गए। जैसे ही हवा नॉर्थ की तरफ गई, इस पे कोरियोलिस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, और कोरियोलिस फोर्स इसे किधर धक्का देगा, टूवर्ड्स इज राइट। हवा को कैसे जाना चाहिए था, सीधे कहां जाना था, पोल के पास जाना था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो मुड़ने लगी, आगे जाके उसकी डायरेक्शन कैसे होने लगी, जाना उसको ऐसे था, लेकिन हवा उसको कैसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। हवा यहां से उठी, छत पे गई, छत से उसको ट्यूब के पास जाना था। ठीक है, उसको कैसे जाना था, यहां से मुझे ट्यूब के पास जाना था, यह उसका डेस्टिनेशन था, लेकिन वो हवा यहां से चली, जैसे ही चली उस पर सीएफ लगने लगा, सीएफ कोरियोलिस फोर्स, वो क्या होने लगी, समझ रहे। ठीक है, ये मेरा इक्वेटर है, मुझे सीधे जाना था, लेकिन जैसे ही मैं चला मुझ पे क्या लग गया, कोरियोलिस फोर्स, तो मैं आगे गया, थोड़ा मुझे कोरियोलिस फोर्स लगना शुरू हो गया। जब तक मैं थोड़ा सा और आगे पहुंचा, अब मेरा मुख इधर है, इधर की इधर, तो अब मैं कैसे बह रहा हूं, ऐसे हम लोग, हवा ऐसे बह रही। अब यहां से भी तो हवा आ रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना भाई, ये थोड़ी एक ही हवा है। तो यहां से हवा आ रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, और यहां पे जो हवा है उसका डायरेक्शन क्या है, तो यहां से हवा आएगी, वो मुझ पे टकराएगी आके, लेकिन मैं तो ऐसे बह रहा हूं, यहां हवा तो ऐसे बह रही है, बैरियर बन गया, बताइए, बैरियर बन गया। तो ये हवा यहां पे इकट्ठी होगी, एक लिमिट तक तो इकट्ठी हो सकती है, फिर वो कहां जाएगी, जाएगी, वो हवा कहां गई, और जब हवा नीचे जाती है तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, क्यों, पर्टिकुलर एरिया में हमारा फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर मेरा क्या हो गया, मेरा प्रेशर ज्यादा हो गया। ये कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने मेंस में 2-3 बार पूछ चुकी है पिछले 4-5 सालों में। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा ट्रेंड लेके लेंगे तो पीटी और मेंस में हाई प्रेशर के कॉन्सेप्ट को लेके इतनी बार स्टूडेंट को घुमा चुकी है कि आप लोग बस लिखेंगे तो 3-4 पेज भर जाएंगे, इतने क्वेश्चन हैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर। वो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ती है और वहां पे प्रेशर लोगों को घुमाती है। ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि, अच्छा बताइए एक चीज और समझ लेते हैं, बाकी और डिटेल में बाद में देखते हैं। बारिश होने के लिए हवा नीचे जानी चाहिए कि ऊपर जानी चाहिए, बारिश होने के लिए हवा नीचे जानी चाहिए कि ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। ऊपर जाने से क्या होगा, सिंपल बात है, बादल बनते हैं, बारिश होगी। जब हवा नीचे ही जा रही है तो बारिश होगी, तो जब बारिश नहीं होगी तो वहां का एरिया क्या हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा। जितने भी डिजर्ट हैं वो सब इसी एरिया में लोकेट है। वर्ल्ड के जितने भी डिजर्ट हैं, डिजर्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, हॉट कोल्ड, मैं हॉट डिजर्ट की बात कर रहा हूँ। जितने भी हॉट डिजर्ट्स हैं, गर्म मरुस्थल,
वो विदाउट एनी एक्सेप्शन कहां पर है? इन एरिया में है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इसी एरिया में सारे डिजर्ट्स क्यों पाए जाते हैं। तो वी हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ कोरियोलिस फोर्स, रेनफॉल, एवरीथिंग। क्लियर हुआ चीज? बताइए, कोई डाउट है? हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। आगे लो प्रेशर और हाई प्रेशर हम लोग समझते हैं, जो और ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हवा ऐसे जानी है, इधर ऐसे जाना है, क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पर रोकता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे इसको चीज़ को हम लोग रोक के घर पे जाके आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान करें कि यहाँ हाई प्रेशर कैसे आया। ठीक है, इसके बाद वाला लेस इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये समझ में आ गई सारी चीज़ें तो हमें मैक्सिमम चीज़ समझ में आ गई। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं अपनी क्लास। ओवर क्लास भी टाइम हो गया। ठीक है, आप लोग बाहर आ जाएं, तीनों बाहर आ जाएं आप लोग, क्योंकि 10 मिनट में देख लेते हैं हम लोग।